Hello everyone, welcome to the CT 360 degrees current affairs session. How are you guys doing? I hope you are doing well. So in this series, we cover current affairs relating to GA and ESI part of your syllabus. We are here particularly targeting NABARD and RBI. But in case you're preparing for any other examination, then also these sessions, they are important for you since we cover it on day-to-day basis. And today we are covering current affairs from 30th of April to 1st of May. And we here also cover all the important sources like the PIB, the Hindu, and the Business Standard so that you need not to get into the newspapers or the articles. All you need to do is watch these videos and please make sure that you keep on revising whatever is taught to you in these series because when it comes to current affairs, retention is very important, which you can only get if you revise these. Right? So now let's start and see what are the topics जो आज हम cover करने वाले हैं. The first is UNESCO Chair on the Gender Inclusion and Skill Development under ESI. Then UAE has exited from OPEC and the OPEC Plus as effective from 1st of May. Then it is Sur Jyotsna National Music Awards we will be covering under GA, and that we are going to cover the DMRC has appointed its first CEO. That also we are going to do under the Journal Awareness appointment section. Right? आइए चलिए let's start with the first. So Asia's first UNESCO chair on gender inclusion and skill development, it recently took place on 24th of April 2026 in Pune, Maharashtra in Symbiosis Skill Professional University. So this chair, it was to bridge the gap between the gender gap in the technical and the vocational education and training so that we can bring forward the women and we can train them in the sectors, in the sun rising sectors, in the sectors where traditionally they have always been underrepresented, like AI, like automation. All these things we want to inculcate these skills. We want to give them these skills, the extensive skill training for the future ready workforce so that they can be ready for the future jobs as well. Okay? So it took place in Pune, Maharashtra. What were the organizations that were involved? The first is the Ministry of Skill Development, then it is UNESCO, and then it is Symbiosis Skills Professional University. Clear है? ठीक है? All right. So I have told you what are their focus areas. So the focus areas are the sun rising sectors or the sunshine sectors जहाँ पे बहुत ज़्यादा growth होने के अब chances हैं. What are those sectors? These are the sectors जहाँ पे हमेशा से ही traditionally जो women है या जो girls हैं उनको under represented रखा गया है. ठीक है? So these are as semiconductors, AI, robotics, advanced manufacturing and the defense technologies. ठीक है? Global collaboration, so it is linked with the international labor organizations. It is linked with the UNESCO Global Skill Academy Paris and is launched during the Women Leading the Future of the Work Conference. ठीक है? Again मैंने आपको बता दिया, it is target is women जो कि under reserved या फिर marginalized communities से आती है so that they can be aligned with the environmental oriented training. They can be trained, they can be given extensive training so that they can become ready for the future jobs that may come. ठीक है? अब 40 प्लस इंडस्ट्री लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स इसको सपोर्ट करते हैं सो दैट, ठीक है, वो अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो एक स्किल और जॉब में जो एक गैप है ये उनको ब्रिज कर सके. ठीक है? It is backed by the MSDE and the Ministry of Education. So whenever training आ जाती है तो Ministry of Education is also involved. तो skills and education दोनों involved इसका मतलब है. So they are teaching the skills. वो extensive skills हम कैसे use करते हैं वो सिखा रहे हैं. ठीक है? Into the broader educational framework. So I hope you are clear with this. Now let's just understand what UNESCO is. I know आप सबको पता है but just a brief introduction just for the people who don't know what UNESCO is. ठीक है? UNESCO एक specialized agency है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है. ठीक है? इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है? तो इसका जो मेन पर्पस है ये यही है दैट इट वांट्स टू प्रमोट पीस बाय कॉपरेशन. ठीक है? When after the World War II it was established, क्योंकि after the devastating World War II they felt that जो कॉरपोरेशन या जो पीस हम लाना चाहते हैं it cannot be alone brought from the economic agreements and the political agreements. We want a organization जो intellectual basis पे, जो moral basis पे भी पीस को क्या करती है, आगे लेके आती है, पीस को
फॉरवर्ड लेके आती है. सो दैट इज वाई इन द ईयर 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था, देन अंडर द लीग ऑफ नेशंस एक इंटेलेक्चुअल बॉडी भी बनाई गई कॉल्ड द इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन. ठीक है, बट आफ्टर दैट जब फिर से हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया आफ्टर द लीग ऑफ नेशंस वाज एंडिंग, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस बना उसके अंदर अब जो बॉडी बनी उसका नाम रखा गया था यूनेस्को. दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एम इज टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन. एंड कौन से फोकस एरियाज हैं इनके? इट इज एजुकेशन, इट इज द नेशनल साइंस, इट इज द सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. Today there are 194 members and 12 associate members under UNESCO, and this headquarters they are in Paris, France. I hope you are clear with UNESCO chair and the UNESCO as well. ठीक है, shall I move on? चलिए. Now it is UAE has exited from OPEC एंड OPEC प्लस. तो दोनों से एग्जिट किया है उसने, OPEC से भी एंड OPEC प्लस से भी. एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2026. इट्स अ मेजर एनर्जी शिफ्ट जो कि देखा गया है, बिकॉज अगर UAE की बात की जाए सो इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हेन इट कम्स टू OPEC ऑर्गेनाइजेशन. OPEC है क्या? OPEC एंड OPEC प्लस. सो OPEC इट स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो ये एक ग्रुपिंग है इन कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोलियम को. ठीक है, सो ये एक ग्रुपिंग है उन कंट्रीज का जो कि एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोलियम को. बेसिकली इनका एम यही है सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोलियम एंड दे कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स. ठीक है, बाय हाउ डज इट वर्क? बेसिकली ये कुछ लिमिट्स या कोटा बोल सकते हैं हम, कोटा अपनी मेंबर कंट्रीज पर लगाती हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम दैट यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस. इससे क्या होता है, जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहते हैं, ना ही ज्यादा हाई हो जाते हैं ना ही ज्यादा लो हो जाते हैं. जो स्टेबल प्राइसेस है इट ऑल्सो हेल्प्स द पेट्रोलियम कंज्यूमिंग एज वेल एज द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, एंड ऑल्सो ताकि जो ऑयल है उसकी ना शॉर्टेज हो एंड ना ही ओवर सप्लाई हो जाए. सो दिस इज वाई ओपेक वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, बट वाई है UAE इज लीविंग इट? इसका रीजन ये है बिकॉज UAE फील्स लाइक जो उसके ऊपर कोटा लगाया गया है बाय ओपेक एंड ओपेक प्लस, दैट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कोटा. ठीक है, तो वो क्या चाहता है दैट उसका जो कोटा है उसको इंक्रीज किया जाए, एंड दैट इज वाई इट हैज एग्जिटेड. क्योंकि इस टाइम पर इट वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 4.2 to 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे, बट इसका टारगेट UAE का टारगेट है टू प्रोड्यूस 5 मिलियन बैरल्स पर डे बाय 2027. सो दैट इज वाई उनको ऐसा लगता है कि दे हैव मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं एंड दे कैन गेन मोर प्रॉफिट्स. दैट इज वाई दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस, एंड उनके पास ताकि ऑटोनॉमी भी ज्यादा आ सके. व्हेन डिड द UAE entered this organization? It was the year 1967. So this can also be asked. ठीक है, तो UAE ने 1967 में OPEC का पार्ट बना था, बट नाउ इन द ईयर 2026 क्या हुआ है, वापस ले लिया गया है. they have withdrew their membership. इम्पैक्ट देखा जाए तो ये मैंने आपको बता दिया दैट इट इज द वन ऑफ द अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन ओपेक. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट था. वीकन करेगा ओपेक के कलेक्शन डिसिप्लिन को, इन्फ्लुएंस होंगे जो ऑयल प्राइसेस एंड द सप्लाई, इट विल बी इन्फ्लुएंस. ठीक है, अगर आपको याद हो 2019 में ना कतर ऑल्सो लेफ्ट ओपेक, उनका भी यही रीजन था. ठीक है, सो अगर देखा जाए तो जो ऑयल इन्फ्लुएंस करने वाली जो बॉडी है उसका जो डिसिप्लिन है वो वीकन हो रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकन हो रही है. एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया? तो इंडिया इज लाइकली टू बेनिफिट आफ्टर इट. तो अभी तो द एक्सपर्ट्स दे आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द वॉर नो मेजर changes would be seen, but once the war situation it stabilizes तो क्या होगा that the prices of the oil they are expected to go down and it will benefit India. India के पास एक और ऑप्शन आ जाएगा where वो जहाँ से import कर सकता है. ठीक है, and it will improve the availability of oil in the global market as well. Clear है? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट ओपेक एंड ओपेक प्लस इज. दो मैंने आपको बता दिया है व्हाट इट इज, बट एक बार फॉर्मली बता देती हूँ. ठीक है, सो ओपेक पहले आपको ये याद रखना है कि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर एज ओपेक प्लस इज नॉट फॉर्मलाइज्ड.
ठीक है, ये फॉर्मलाइज्ड नहीं है, वेयर एज दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960 एंड मैंने आपको बताया दैट 1967 में यूएई ने एंटर किया इस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, सो बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, दीज वर द 5 नेशंस, 5 कंट्रीज जिन्होंने ओपेक बनाया था. इट वाज टू मैनेज, अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट पेट्रोलियम पॉलिसीज एंड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट, ऑयल की स्टेबिलिटी को, उनके प्राइसेस को करना. ठीक है, यूएई ज्वाइंट इन 1967. ठीक है, एंड रिमेन्ड एन इन्फ्लुएंशियल मेंबर, बट पोस्ट एग्जिट नाउ अगर बात करें देयर आर नाउ 11 मेंबर्स. ठीक है, अब कितने हैं? देयर आर 11 मेंबर्स. तो ये ओपेक, एंड अब ओपेक में तो ना सारी वो कंट्रीज आती हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं. दे आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स, वेयर एज इट इंक्लूड्स, व्हाट इज ओपेक प्लस, इट इंक्लूड्स ऑल द ओपेक कंट्रीज. ठीक है, एक तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन आती है इसमें, प्लस द नॉन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज वेल. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये लीड करती है रशिया, वेयर एज दिस इज नॉट फॉर्मलाइज्ड बट इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2016. ठीक है, सो इट इज एन अलायंस बिटवीन द ओपेक एंड द मेजर नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स. ठीक है, एंड इसको कौन लीड करता है? इसको लीड करता है एशिया. इट अकाउंट्स 40% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड 60% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडेड पेट्रोलियम. एंड अगर रिजर्व की बात करें, इट इज 80% ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व इन कंट्रीज के पास ही है. सो आप देखिए दैट इट इज अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नाउ with time losing its strength, losing because it is weakening, because now countries they are actually coming out of it, वो इसकी मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं. क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट. Now it is the Sur Jyotsna National Music Awards. So the 13th edition of these awards they were held, and it was held by Dr. Ambedkar International Center. सिर्फ हम ये दो नाम याद रखेंगे. It is Sumitra Guha and it is Lakshman Krishna Rao Pandit. They have been awarded. किनको represent करते हैं, किनको award देते हैं? They are recognized for the exceptional contribution of the Indian classical music, जो कि इंडिया के हेरिटेज को आज भी संभाल के रख रहे हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. So the awards they are given to Sumitra Guha and the Lakshman Krishna Rao Pandit. ठीक है, they are named after the Jyotsna Darda. So she was an activist and also a music composer. ठीक है, and इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी, उनका नाम भी था ज्योत्सना दारदा. ठीक है, गुंजन जैन ने ये बुक लिखी थी. It is organized by the Lokmat Media Group and it aims to honor excellence in the Indian music and promote the emerging आर्टिस्ट इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रीम्स. ठीक है, क्लियर है? सिर्फ हम ये दो नाम याद रखेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ सो द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया है संजय जमुआर को एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द DMIL, दैट इज द दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड. ठीक है, पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड. सो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड एक सब्सिडरी है ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. ठीक है, क्यों बनाया गया है इसको? सो दैट जो दिल्ली मेट्रो की एक्सपर्टीज है, जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, हम उसको दिल्ली से बाहर लेके आ सके, नेशनली भी एंड इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी, दैट इज अब्रॉड भी लेके जा सकें. ठीक है, सो इट्स अ सब्सिडरी है दिस ऑर्गेनाइजेशन, द दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड. ये एक सब्सिडरी है ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंड इन्होंने अपना फर्स्ट सीईओ सिलेक्ट कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है, हु इज संजय जमुआर. ठीक है, एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल ओनली, अभी बनी है ये अप्रैल 2026 में. ठीक है, एंड दे हैव अपॉइंटेड देयर फर्स्ट सीईओ एज वेल. ठीक है, इट सिग्निफाइज अ शिफ्ट फ्रॉम मेट्रो ऑपरेशंस टू अ ग्लोबल मेट्रो सॉल्यूशन प्रोवाइडर. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी द मेजर मेट्रो ऑपरेटर्स से हम क्या बन जाएंगे? ग्लोबल मेट्रो सॉल्यूशन प्रोवाइडर. ठीक है जी, क्लियर है ये भी आपको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ठीक है, विद रेफरेंस टू यूनेस्को चेयर, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग. ओके, इट एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स. द प्रोग्राम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज इन इंडिया. It is established under the framework of UNESCO Chair Program. So what do you think is the right answer? The right answer to this question is option B, that first and the third statement they are correct, but the second statement is not correct. वहाँ पे हमें कहीं पर भी ऐसे rural area पढ़ने को नहीं मिला, so this is not correct. ठीक है? Second is Delhi Metro Rail Corporation has appointed who among the following as the first chief
executive officer of the Delhi Metro International Limited. So what do you think is the right answer? We have just done it and I know that you all know it. It is option C, that is Sanjay Jamar. ठीक है जी. Now I've prepared a homework question for you. Do let me know what do you think is the right answer. I am reading it for you. So it is with reference to the OPEC Plus. OPEC Plus is an alliance of the Organization of the Petroleum Exporting Countries and the non-OPEC oil producing countries. It was formed to coordinate production policies and stabilize global oil markets. All the member countries of OPEC Plus, they are the permanent members of OPEC. So do let me know what do you think is the right answer. And for more such current affairs, please follow our channel. I will see you now with the next video with another set of current affairs. All right, bye bye everyone. Thank you for watching.